بیٹا، میٹھے پھولوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دکھنے میں بڑے خوبصورت دکھتے ہیں۔ مما، اب میں بھی آپ کے ساتھ میٹھے پھولوں کی رس اکٹھا کیا کروں گا۔ بنٹی اور اس کا بیٹا منٹو بیٹھے ایسے باتیں کر رہے تھے کہ ایک خونخوار چیل پیچھے سے آتی ہے اور منٹو کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ مما منٹی کچھ نہ کر سکی کیونکہ وہ تو بہت کمزور تھی، وہ تو بس رو ہی جا رہی تھی۔ ہائے میرا بیٹا، میرے بیٹے کو کوئی بچاؤ، خونخوار چیل میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ پھر منٹی کبوتر کے پاس جاتی ہے۔ کیا ہوا منٹی، آپ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کبوتر بھیا، وہ چیل میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گئی ہے، وہ ظالم چیل میرے بیٹے کو میرے آنکھوں کے سامنے اٹھا کر لے گئی اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ یہ چیل اب کسی کو نہیں چھوڑے گی، ہر روز کسی نہ کسی چھوٹے پرندے کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اب ہمیں اسے چیل کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ دوسرے روز سب پرندے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اگر ایسے ہی ڈرتے رہے تو یہ چیل کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اب کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا ہوگا، ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے کہ کیسے اس چیل کو ختم کر سکتے ہیں۔ بتاؤ کبوتر بھیا، ہمیں تو رات کو بھی نیند نہیں آتی اس چیل کے ڈر سے۔ پھر کبوتر سب پرندوں کو اپنا پلان بتا دیتا ہے کہ کیسے اس چیل کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور کبوتر کے اس پلان سے سب پرندے راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبوتر بھیا، چیل کے پاس جائے گا کون؟ میں جاؤں گا اور باقی کا کام آپ سب لوگ کرو۔ پھر سب پرندے ایک بڑی دیگ لیتے ہیں اور اسے چولہے پہ رکھ کر آگ جلا دیتے ہیں۔ چیل جی، میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ کیا بات ہے کبوتر، کیا آج بھی ایک چھوٹا پرندہ مجھے گفٹ میں دینا ہے؟ چیل جی، ہم سارے پرندے آپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور رات بھر نیند بھی نہیں آتی۔ ڈرو گے کیوں نہیں، کیونکہ میں آپ سب پرندوں سے بڑی ہوں اور طاقتور بھی۔ چیل جی، آج ہم سب نے آپ کے لیے ایک دعوت رکھی ہے، آپ آج شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، کیونکہ ہم سب آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور آج کے بعد آپ جنگل میں شکار کرنے نہ جائیں، کیونکہ آج کے بعد ہم میں سے ہر پرندہ آپ کو باری باری چھوٹا بچہ یہیں دے جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی چال ہوگی تمہاری۔ نہیں چیل جی، ایسے تو ہم رات کو سکون سے سو سکیں گے۔ تو پھر شام کو آ جاؤں گی، کھانے میں کچھ اچھا بنا کر رکھنا میرے لیے۔ پھر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کبوتر کیا مان گئی چیل؟ کیا وہ شام کو آئے گی نا ہماری دعوت کھانے؟ میں نے اس کو ایسی لالچ دی ہے کہ وہ ضرور آئے گی۔ آگ تیز کر دو، پانی کو اچھے سے گرم کرو۔ کبوتر بھیا، اب تو پانی بھی ابلنے لگا ہے اور شام بھی ہو جاتی ہے۔ آج اس چیل کو مرتا دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملے گا۔ کتنا رویا ہوگا میرا چھوٹا سا بچہ جب اس چیل نے میرے بیٹے کو کھایا ہوگا۔ چیل بھی سب پرندوں کی دعوت کھانے آ جاتی ہے۔ اگر سب اکٹھے بیٹھے ہو مجھے ڈرانے کے لیے تو ایسا سوچنا بھی نہ۔ نہیں چیل جی، یہ سب آپ سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا بنایا ہے میرے لیے؟ چیل جی، آج ہم سب نے آپ کے لیے تو چھوٹے بچوں کا شوربا بنایا ہے، وہ ابھی پک رہا ہے، اس میں
भूख तो बहुत ज्यादा लगी है कबूतर, और तुम्हारा खाना अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। चील जी, हमें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। आप करीब जाकर देखें कि शोरबा भी बना है या नहीं। चील फौरन उस बड़ी देग के पास जाकर बैठ जाती है। इसमें से मांस की खुशबू क्यों नहीं आ रही? गोरी कौवी जल्दी से जाकर उस चील को बड़ी देग में धक्का दे देती है, क्योंकि मांस अभी हमने इसमें डाला ही नहीं। वो चील उबलते हुए पानी में मर जाती है और सब परिंदे खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगल में बरसात हो रही थी। गर्मी के मौसम में बरसात तो सबको अच्छी लगती है। सभी नदी नाले भर चुके थे और फूल महक रहे थे और दरख्तों के पत्ते भी साफ हो चुके थे। अब मैं फिर से भर चुकी हूँ। अब मैं पहले की तरह परिंदों को ठंडा ठंडा पानी दिया करूँगी। ये बहुत बड़ी खुशी होगी मेरे लिए। पास में छोटा रोज नदी की सारी बातें सुन रहा था और मैं अपने दोस्तों को खूबसूरत सी खुशबू दूंगा। इस खुशबू से सारा जंगल महकेगा। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है इस जंगल में। और अच्छा कौन और बुरा कौन, ये खुशबू सबके लिए है। और अब मैं जल्द जवान हो जाऊंगा और मेरी रंगत सुर्ख हो जाएगी। दोनों की बातें पेड़ ने भी सुनी और उससे भी कुछ बोले बिना ना रहा। मैं फिर से जी उठा। मैं तो मरने वाला था, लेकिन मुझे पानी मिल गया। अब मैं सभी परिंदों को धूप में साया दूंगा, फल दूंगा और घर बनाने के लिए लकड़ी भी दे सकूंगा। हा 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 हा। अब हम सब फिर से जवान हो गए। वो सब ऐसे ही खुश थे। चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। मम्मा, ये बारिशें कैसे होती हैं? जब सागर का पानी धूप में बदल जाता है तो वो पानी बन जाता है, और जब बादलों में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो हवाएं उन्हें सूखे जंगल में ले जाती हैं और फिर बरसात होती है। मम्मा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सागर का पानी खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि सागर बहुत बड़ा है। जितना पानी बादलों में जाता है उससे कहीं ज़्यादा पानी बरसात का पानी इकट्ठा होकर दरियाओं नदी नालों से होता हुआ सीधा सागर में चला जाता है। वो माँ बेटा बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे और बारिश का मज़ा ले रहे थे। कालू कौवा ऐसे मौसम में घर में आराम से बैठने वाला ही नहीं था। उसे भूख सता रही थी और वो उड़ते उड़ते नदी के पास आ जाता है। कौवे, क्या भूखे हो? हाँ, मैं बहुत भूखा हूँ। अब बारिश हो गई है। जल्दी मैं आप सब परिंदों को मीठे मीठे फल दूंगा। अब आप ऐसा करें, मेरी जड़ के पास एक चावल का पौधा है। आप उससे चावल खा लें और अपनी भूख मिटा लें। कौवा पेड़ के नीचे आता है और चावल खा लेता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कौवे कौवे, मैं कब से किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे पास आओ। जी जी, बोलिए नदी जी, आप मुझे बुला रही हो? क्या बात है गोरी नदी जी? जो पानी में जमा कर सकती थी मैंने कर लिया, और अब पानी बढ़ रहा है, और अगर ऐसी बरसात होती रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और नदी में बाढ़ आ जाएगी। ये सुनकर कौवा डर जाता है। गोरी नदी जी, और अगर बाढ़ आ गई, जो बरसात से हमें खुशी मिली है वो सब खत्म हो जाएगी। तो फिर आप ऐसा करें, मैंने जो ये चिट्ठी लिखी है बादलों के नाम लिखी है, आप इस चिट्ठी को बादलों तक पहुंचा दें। पर गोरी नदी जी, मुझे तो नहीं पता बादल कहाँ मिलेंगे।
सागर पे जाएं और आप अपने साथ चिड़िया को लेकर जाएं। चिड़िया को सब पता है कि बादल कहाँ रहते हैं। हाँ गौरी जी, मैं जाता हूँ। अपने आप को काबू में रखें और जंगल में बाढ़ ना आने दें। बस जल्दी जाओ, वक्त थोड़ा है। कौवा फौरन चिड़िया के घर जाता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन कौन है ऐसी बारिश में? चिड़िया बहन, मैं कालू हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं नदी पर गया था और नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है। यह चिट्ठी हमें बादलों तक पहुँचानी होगी। यह चिट्ठी मुझे नदी ने दी है। क्या नदी में बाढ़ आने वाली है? वक्त बहुत थोड़ा है। गौरी नदी ने हमें कहा है जल्दी से ये चिट्ठी बादलों तक पहुँचा दो, और उसने मुझे आपको साथ ले जाने को कहा था। कुकू बेटा, मैं और आपके अंकल बादलों के पास जा रहे हैं, आप जल्दी से सो जाइए। हम थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं। मम्मा जाएं, आप जल्दी जाएं, सब परिंदों की जिंदगी का सवाल है। फिर कौवा और चिड़िया घर से निकलते हैं और बारिश भी तेज हो रही थी, पर फिर भी कौवा और चिड़िया अपने साथियों को पानी की बाढ़ से बचाने के लिए उड़ते हैं और वो बादलों के पास पहुंचते हैं और जाकर चिट्ठी बादल को देते हैं, जिससे वो पढ़ता है। बादल जी, बोली नदी ने कहा है कि बारिश नहीं रुकी तो सब खत्म हो जाएगा और सारी खुशियाँ भी खत्म हो जाएंगी जो बरसात ने हमें दी हैं। तो क्या भोली नदी फट चुकी है? थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, आप बादलों को जल्दी से बुला लें। तो आप ऐसा करें, ये चिट्ठी हवाओं की रानी के पास ले जाएं और हवाओं की रानी को ये चिट्ठी दें और वही बादलों को वापस लाएगी। फिर चिड़िया और कालू कौवा जल्दी से उड़कर वो चिट्ठी हवाओं की रानी के पास ले जाते हैं। हवाओं की रानी पहाड़ों में संगीत गा रही थी। रानी रानी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और नदी जी ने हमें बादलों के पास भेजा था, और फिर बादल ने ये चिट्ठी आपके नाम भेजी है। चिड़िया, आप पढ़कर बताओ, बादल ने चिट्ठी में क्या लिखा है? हवाओं की रानी, आप जल्दी से जाएं, इन परिंदों के साथ जाएं और जो बादल इन जंगलों में बरसात कर रहे हैं उन्हें उड़ाकर कहीं सूखे जंगलों में ले जाएं। तो क्या आपके जंगल में बाढ़ आने वाली है? नदी नाले सब भर चुके हैं और कुछ देर और बरसात होती रही तो बाढ़ आ जाएगी। आप मेरे पीछे पीछे आएं। ऐसे हवाओं की रानी तेजी से आगे बढ़ती है। कौवा और चिड़िया भी उसके साथ साथ जाते, और फिर हवाओं की रानी बादलों को उड़ाकर सूखे जंगल में ले जाती है। बारिश रुक जाती है। नदी की रानी, हमने कर लिया, हमने अपने जंगल को बारिश की बाढ़ से बचा लिया। अगर आप ऐसी कोशिश ना करते तो बहुत बुरा होने वाला था। शायद मैं भी अपनी जवानी नहीं देख पाता और पानी में डूबकर मर जाता, और मैं भी अपने दोस्तों को फल ना दे पाता। चिड़िया बहन, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग गई है। क्या आपके घर में कुछ खाने को है? कौवे भैया, आप मेरे साथ चले, मेरे पास बहुत सारा खाना है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर इस वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाए।